السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پہاڑی شریف پولیس حدود میں ایک ساتھ 5 مکانات میں چوری، 17 تولے کے طلائی زیورات اور 70 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ۔ کوٹھی میں آروگیہ شری ہیلپ لائن کیئر پر ACB ڈائریکٹر کا اچانک دورہ، رشوت خور عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا تیقن۔ فروری تک حیدرآباد میں ترکی کے قونصل خانے کا قیام، استنبول کے میئر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ اور غیر سماجی اور مجرمانہ عناصر کے خلاف حیدرآباد پولیس کی خصوصی مہم، کالا پتھر اور سنتوش نگر میں 5 افراد کے خلاف PD ایکٹ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود میں بالاپور کی میگا ڈریم سٹی میں ایک ساتھ 5 مکانات میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ مکین شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ صبح 4 بجے جب وہ گھر لوٹے تو دیکھا کہ مکانات کے قفل ٹوٹے ہوئے ہیں اور مکان سے طلائی زیورات اور نقد رقم غائب ہے۔ سارقوں نے قریب 17 تولے کے طلائی زیورات اور 70 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا تھا۔ ایک ساتھ 5 مکانات میں سرقے کی ان وارداتوں سے مقامی مکینوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ عوام کو شادی یا دیگر تقاریب میں جانے سے پہلے مؤثر انتظامات کرنے چاہیے۔ پولیس کو بھی مضافاتی علاقوں میں پیٹرولنگ میں شدت پیدا کرنی چاہیے تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو سکے۔ شہر میں ایک ساتھ اتنے سارے واقعات کے رونما ہونے سے پولیس کے پیٹرولنگ پر بھی سوالیہ نشانات اٹھ سکتے ہیں۔ پہاڑی شریف پولیس نے مذکورہ سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ بڑی تعداد میں عوامی شکایتوں کے بعد محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے کوٹھی پر واقع آروگیہ شری ہیلتھ لائن کیئر پر دھاوا کیا ہے۔ تلنگانہ محکمہ انسداد رشوت کے ڈائریکٹر AK خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی طرف سے رشوت طلب کرنے والوں کی شکایت کے لیے فراہم کیے گئے ٹیلی فون نمبر پر یومیہ 3000 شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آروگیہ شری ہیلپ لائن کیئر پر دھاوے کے دوران 500 شکایتوں کی نشاندہی کی گئی جو محکمہ انسداد رشوت کے تحت آتی ہیں۔ AK خان نے بتایا کہ جن اضلاع سے یہ شکایتیں موصول ہوئی ہیں انہیں ACB کے متعلق عہدیداروں کے پاس بھیجا جائے گا اور ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جس عہدیدار کے خلاف شکایت موصول ہوگی اسے متعلقہ شعبے سے رجوع کیا جائے گا۔ جو نئے اسکیمز گورنمنٹ سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کس طرح کے دقتیں پیش آ رہے ہیں اور لوگوں کو جو بھی فائدہ پہنچنا ہے یہ فائدہ ان تک کس لیے نہیں پہنچ رہا ہے، یہ سب باتوں کا جائزہ لینا ہوا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ وہاں پہ جب تھے تو یہ اعلان بھی کرے تھے کہ نمبر دیے تھے، ٹیلی فون نمبر، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، کہیں کوئی آفیسرز رشوت مانگ رہے ہیں یہ سروسز فراہم کرنے میں تو ان کے خلاف کمپلینٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمبر جو ہے آروگیہ شری میں 104 سروسز جو ہے اس کے تحت آتا ہے۔ اور یہ اتنے کمپلینٹس آنا شروع ہوئے کہ اسی دن وزیر اعلیٰ ایک اعلان بھی کرے کہ اب جو ٹیلی فونس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور 30 ٹیلی فون لائنس کا اضافہ کرے اس دن۔ جب سے آج تک ہر دن 3000 سے زیادہ کمپلینٹس، یہ سب رشوت خوری کے لیے نہیں ہیں، سب سروسز تھوڑے نہیں ملے ہیں، ابھی جو پینشن کارڈس آنا ہے یا ہاؤسنگ سکیمز ہیں یا ریشن کارڈس آنا ہے یا نہیں ملے، ایسے بہت سارے کمپلینٹس ہیں۔ اس میں سے رشوت خوری کے جو کمپلینٹس ہیں ان کو سپریٹ کرتے ہوئے
वो ACB के तहत जो भी काम हो सकता है उसको जल्द से जल्द करने के लिए हम लोग आज एक टीम को भेजे थे, हमारी ACB टीम को। तो 10,000 में से हमें तकरीबन 500 कंप्लेंट्स ऐसे इनकी शनाख्त हुई है कि इन पे ACB कार्रवाई कर सकती है। ये तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट्स हैं। अब ये हम लोग ये जो कंप्लेंट्स लिए हैं इनको हमारे DSPs और ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनको भेजें। वो वहाँ पे छानबीन करने के बाद ACB में इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी का तरीका है, वो तरीके से वो इंक्वायरी करेंगे। करने के बाद में जहाँ भी ठोस सबूत हासिल होते हैं उसके बुनियाद पर वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी के जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें आए हैं, वो डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे हम लोग। वो डिपार्टमेंट्स में उनको सर्विसेज के लिए एलिजिबल है ही नहीं है, अगर एलिजिबल हैं तो उन तक वो सर्विसेज पहुँचाए जाएंगे और अपने सिस्टम्स इंप्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट्स को उनको भी एक मौका मिलेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को ज़िले महबूब नगर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपने मुजव्वज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला स्लम इलाक़ों में जाकर मकामी मसाइल और इंतज़ामिया की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। हुकूमत तुर्की फरवरी के महीने में शहर हैदराबाद में अपना कौंसल खाना खोलेगी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इस्तांबुल के मेयर कादिर तोब्बास के दरमियान आपसी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत हुई है। मेयर इस्तांबुल कादिर तोब्बास ने वज़ीर आला को इस्तांबुल का दौरा करने की दावत दी है, जिसे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबूल कर लिया है। कांग्रेस रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तब्दीली ज़रूरी है। मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए KCR के लिए काम करने वाले कायदीन को फौरी तब्दील करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल न होने से पार्टी की हालत अबतर हो चुकी है। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में राहुल गांधी पार्टी में सरगर्म रोल अदा करेंगे। Symbol of unity is most necessary. గాంధీ నెహ్రూ ఫ్యామిలీ ఈ దేశంలో సింబల్ ఆఫ్ యూనిటీ. కాబట్టి అటువంటి తరుణంలో ఇప్పుడు ఏ మార్పు కూడా ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెన్షిప్లో మార్పు అవసరం లేదు. సోనియా గాంధీ గారు ఉంటారు, రాహుల్ గాంధీ గారు మన మంచి పాత్ర వహించి దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏది మన ప్రక్షాళన చేయడానికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను। बीजेपी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने कहा है कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में बीजेपी तेलुगु देशम के साथ मिलकर मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पार्टी निशान पर नहीं हुए थे। लक्ष्मण ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS, कांग्रेस और MIM वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि GHMC के इंतखाबात में अवाम बीजेपी को ज़रूर कामयाब बनाएंगे। మేము ఇంకా చేస్తున్నాం। రేపు ఈ సభ్యత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ పాలనను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం కూడా ఈ 7 మాసాల్లో ఏ రకంగా విద్యార్థుల్లో అసంతృప్తి, నిరుద్యోగ యువతలో ఉన్న అసంతృప్తి, రైతుల ఆత్మహత్యలు, రుణమాఫీ, ఈ కరెంటు సంక్షేమం ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి। అందుకనే హైదరాబాద్కు బీజేపీ గెలుపు అవసరమైనటువంటి భావన సర్వత్రా ప్రజల్లో ఉన్నది। భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా మేము గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాం। ఇంతకుముందు మా అధ్యక్షుడు ప్రకటించినట్టుగా వచ్చే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశంతో కలిసి పోటీ చేస్తాం। ఆ రకంగా మరి ఇక్కడ కాంగ్రెస్, మజ్లిస్, TRS వాళ్ళు ఏ రకంగా మతోన్మాదమైనటువంటి మజ్లిస్ పార్టీతోని కుమ్మక్కై ఏ రకమైన రాజకీయాలు నడుపుతున్నారో, ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రజలకు బాగా తెలుసు। ఖచ్చితంగా ఈ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పిస్తారనేటువంటి నమ్మకం మాకు ఉంది। कांग्रेस के सीनियर कायद M सत्यनारायणा ने कहा है कि गवर्नर बनने का उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। अपने 27वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने कहा कि आला कमान की अदम तवज्जोही की वजह से तेलंगाना में पार्टी की हालत अबतर हुई है। सत्यनारायण ने कहा कि वज़ीर आला KCR ऐलानात तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उन पर अमल आवरी से ही फ़ायदा होगा।
PCC صدر کی تبدیلی سے متعلق سوال پر ستیہ نارائنا نے کہا کہ اس سے حالات نہیں بدلنے والے کیونکہ ملک میں کانگریس مخالف لہر چل رہی ہے. హైకమాండ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కొద్దిగా సరిగా డీల్ చేయలేదని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇట్లా లేకపోయినట్టుంటే ఈ విధంగా పరిస్థితి ఉండకపోయేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఇప్పుడు ఏదైతే పార్టీ ఉందో రూలింగ్ పార్టీ అందరూ కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉండే, మా కార్యకర్తలకు కూడా అంత అవకాశం వచ్చేది, అందరూ ఉండేది. అది లేకుండా పోయింది. సరిగ్గా వ్యవహారం చేయాలని చెప్పి నేను మొదలు చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. అది ఇవే చూస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పార్టీకి చాలా నష్టం కూడా అయిపోయింది. ఒక్క మన రాష్ట్రంలో కాదు, మొత్తం ఏదైతే ఉందో జాతీయ స్థాయిలో కూడా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా మరి పార్టీ చాలా అవస్థలో ఉంది. దీన్ని ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ పైకి తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టమైన పని. शहर में संक्रांति का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया. नेकलेस रोड पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और दीगर बीजेपी कायदीन ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया. दत्तात्रेय ने इस मौके पर कहा कि पार्टी कायदीन के मुतनाज़ा बयानात से उनकी पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है. उन्होंने कहा कि तरक्की ही बीजेपी का एजेंडा है. दत्तात्रेय ने मुतनाज़ा बयानात पर रोक लगाने पर जोर दिया है. उन्होंने संक्रांति त्यौहार को मिठास घोलने वाला त्यौहार करार दिया. हैदराबाद में हिफाजत और सलामती के लिए पुलिस की जारिया मुहिम के हिस्से के तौर पर साउथ जोन पुलिस ने रोडी शीटर्स और चेन खींचने वालों के खिलाफ खुसूसी इक़दामात का आगाज़ किया है. पुलिस ने कत्ल, हमलों, ज़बरदस्तियों, हिरासानियों और जुल्म सितम जैसी सरगर्मियों को कुचलने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है ताकि समाज में बड़े पैमाने पर अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में मदद मिल सके. इस खुसूस में DCP साउथ जोन की तजवीज़ पर कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रोडी शीटर अयूब की टोली और चेन उड़ाने वाले 3 अफराद के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया है. उनमें 23 साला मोहम्मद असद और 25 साला शेख उबैद शामिल हैं जो काला पत्थर पुलिस हुदूद से ताल्लुक़ रखते हैं. इसके अलावा चेन खींचने की वारदातों में मुलविस 3 मुजरिमीन 24 साला अहमदुद्दीन सिद्दीकी, 21 साला मोहम्मद शरीफ उर्फ छोटू और 45 साला P लक्ष्मण को भी PD एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है. इन 3 का ताल्लुक़ संतोष नगर पुलिस हुदूद से है. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर 5 नोटोरियस क्रिमिनल्स के ऊपर 2 आयुब गैंग राउडी शीटर्स एसोसिएट्स शेख उबैद, मोहम्मद असद और 3 राउडी शीटर्स 3 चेन स्नैचर्स 2 मादन्नापेट का मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सिद्दीकी को और संतोष नगर का चेन स्नैचर पुलिगला लक्ष्मण के ऊपर PD एक्ट इन्वोक कर दिया गया. एक मोहम्मद असद, शेख उबैद, ये दोनों मोहम्मद अयूब खान का एसोसिएट्स थे. आशफाक का साथ ये अटेम्प्ट टू मर्डर्स, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्वमेंट हुआ था और नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ उनके ऊपर नहीं काम कर रहा है. वो बेल पे आके फिर उनका हैबिचुअल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहा था. इसीलिए ओनली PD एक्ट करने में वो लोग से नॉर्मल पब्लिक को और लॉ एंड ऑर्डर को ये प्रोटेक्शन मिलने के लिए संभावना है. इसीलिए ये देखकर सोचकर पूरा प्रपोजल्स CP साहब का पहले रखकर उन लोगों के ऊपर PD एक्ट लगा दे. उन लोगों को चर्लपल्ली जेल अभी भेज रहा हूँ. एक शेख उबैद का ऊपर 17 केसेस थे, मोहम्मद असद का 9 केसेस, चेन स्नैचर्स मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सिद्दीकी को ऊपर 11 केसेस था और लक्ष्मण के ऊपर 15 केसेस था. ये लोग सब लोगों को हैबिचुअल एक्टिविटीज़ करने में वो नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है. इसीलिए उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए ये PD एक्ट इन्वोक कर दिया गया.
संगारेड्डी के वार्ड नंबर 13 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चारशंबे के दिन चेयरमैन बलदिया विजय लक्ष्मी ने एक सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि ड्रेनेज के काम कबल अज़ इख्तिताम को पहुंचे। वाज़ेह है कि साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी मज़कूरा हल्के के दोबारा रुकन असम्बली रह चुके हैं। उन्होंने 2 मरतबा वार्ड नंबर 13 की इस कच्ची सड़क का दौरा किया था, जहां बारिश का पानी जमा हो गया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। करीब 35 साल के अरसे में 6 कॉरपोरेटर्स की मियाद गुजर जाने के बाद मजलिस की नुमाइंदगी पर सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया। इस मौके पर मजलिस के टाउन प्रेसिडेंट ख्वाजा निज़ामुद्दीन और रुकन बलदिया नाजिम अज्जू मौजूद थे। स्कूल नेशनल गेम्स किक बॉक्सिंग के 50 किलो के ज़ुमरे में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले अकबर खान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी इनाम याफ्ता तालिब इल्म को मुबारकबाद दी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में एक साथ 5 मकानात में चोरी, 17 तोले के तिलाई जेवरात और 70 लाख रुपए नकद रकम का सरका। कोठी में आरोग्यश्री हेल्पलाइन केयर पर एसीबी डायरेक्टर का अचानक दौरा, रिश्वतखोर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का तयक्कुन। फरवरी तक हैदराबाद में तुर्की के कौंसल खाने का क़ियाम, इस्तांबुल के मेयर की वजीर आला से मुलाकात। और गैर समाजी और मुजरिमाना अनासिर के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की खुसूसी मुहिम। काला पत्थर और संतोष नगर में 5 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।